Once again, good evening, everyone. Some of the participants might have issues like they are not able to hear my voice, or some other issues are there. Then you please type your whatever the problem is you are facing, and I request other members to tell them. And the class timing usually will be 9 to 10, and I am taking this class of climatology. Those who are attending the class for the first time, they might have missed few things, but today is very critical class where we will talk about jet stream, air masses, and temperate and tropical cyclones. And the last topic will be tomorrow about climatic classification across the world. So we have covered so many few things. Those who have missed the lectures, I'll try to provide you the lectures. So don't worry about that. Okay. And whatever issues you face, please let me know. I'll try to resolve all your issues. And what you need to attend this class is just have some sufficient data. If your data is just 1.5 GB, upgrade it to 3 GB per day. And just a good internet connection and a smartphone is required to attend the classes. And I'll share these PPTs also, whatever I'm taking. I'll try to explain the simplest possible form. You can ask questions at the end of the class. I'll take questions also. So we will keep it a friendly manner, and whatever doubts, problems you have, just share with me. I'll try to solve them. The class is just to benefit you only, and we will try not only to finish geography tomorrow. From tomorrow onward, 1 o'clock in the noon, I'll take a polity class also. Those who have time, those who can attend, you can invite your friends also. My channel can have a capacity of 500 now. So this link will be same every day. You don't have to ask again and again how to join. If there will be any change, you will be informed up prior. मैं आपको पहले से inform कर दूंगा. तो चलो, without wasting much time, I hope all of you are able to see my screen now. Okay. इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अमिता. इट विल बी सॉल्व, डोंट वरी. आई एम यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पिक्चर्स. क्वालिटी इंग्लिश में ही रहेगी. बाइलिंगुअल करने की कोशिश करूंगा मैं. वॉइस प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्मली, इफ इट इज नॉट फॉर एवरीवन, then it might be at your end. Otherwise, if there is a problem, I have tried. If you could tell the first time joiners as what they might have missed. Geography के just lectures miss हुए. Geomorphology वाला portion and this क्लोज कैसे करें. स्क्रीन पर चैटिंग को क्लोज कैसे करें. जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो उस पर दबा दीजिए, क्लोज हो जाएगी आपकी. अभी आपको स्क्रीन दिखने लगेगी. Other people will be answering your queries. Let me proceed with the class. Otherwise, other people will face some problems. Okay. So I don't want to waste your time. हिंदी में कोशिश करूंगा यूज करने की, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं बहुत ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल क्लास को समझाने में नहीं कर पाऊंगा. आप किताबों से पढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी. इतना घबराने की जरूरत नहीं है. अंग्रेजी इतना भी परेशान करने वाली लैंग्वेज नहीं है. Don't worry, just hang on for some time. Within a week, you will start understanding everything. But polity में एक शब्द हिंदी यूज कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा. But still, I'll try to incorporate pictures and text to the extent possible so that आपको आसान लगे. चलो, let's start with today's class. ठीक है. तो कल हमने जो पढ़े थे उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. बहुत ज्यादा नहीं करते. I'll come to this. तो टुडे इज द क्लास 6. तो प्रेशर वेल्ट्स वगैरह जो बहुत बेसिकली आसानी से हो गए थे हर किसी के साथ. यार ये हो सकता है मेरे एंड पे भी प्रॉब्लम हो रही हो. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट टू द एक्सटेंट पॉसिबल. ओके. आई होप कि थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो. And everyone, please keep your videos in off mode. You don't need to keep your videos on. Audio mute, video सब mute करके रखने हैं आपको. So we talked about these pressure belt, और ये डिस्कशन आसानी से हो चुका था. कहाँ पे
आपकी एयर ज्यादा जा रही है, कहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, कहाँ पे लो प्रेशर। तो ये आपका लो प्रेशर बेल्ट था आपका, ये हाई प्रेशर था, ये सब ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल था, ये सब ट्रॉपिकल था, ये पोलर था, ये सब पोलर था। ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हो गया, ये सब पोलर हो गया, ये आपका पोलर हो गया। ये चीजें तो बहुत डिटेल में 3 दिनों से डिस्कस हो रही हैं। जस्ट एक तो प्रेशर बेल्ट, और प्रेशर को जब इंडिकेट करते हैं तो आप किससे करते हैं? प्रेशर को इंडिकेट करते हो बार में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1013 मिली बार। तो कहीं पे लो प्रेशर कहेंगे तो अब ये जो प्रेशर लाइंस जो होती हैं, एक समान प्रेशर वाली जो लाइन है, उनको आप आइसोबार बोलते थे। सो दीज आर द आल्सो स्मॉल थिंग्स। सो अब ये जो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड फ्लो करती है। तो विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। विंड आपको बताया था कभी भी वर्टिकली मूव नहीं करेगी अंटिल इट इज फोर्स्ड। आप उसे फोर्स करोगे देन ओनली इट विल मूव, then only it will move vertically, otherwise it will never move up, against the gravity movement नहीं होगा। तो because of the pressure difference horizontal movement होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो विंड अब आपकी जो है जिधर से आती है उधर से नाम दिया गया था, ये सब बता दिया था। पर एक बात और समझने की, अगर विंड आपकी ओशियंस के ऊपर से आ रही है तो ऑफ कोर्स ओशियन में वाटर का इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेशन से मॉइस्चर जो है ऊपर जा रहा है, तो उस जो विंड के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होगा। दीज विंड विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रेसिपिटेशन, मतलब जो रेनफॉल कितनी होगी, कहीं पे कितनी बारिश होती होगी, वो सब ये डिटरमाइन करने में इनका बहुत क्रिटिकल रोल होगा। तो जो विंड की स्पीड होती है वो डिटरमाइन होती है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट से। तो ये मान लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये है कि 28 से, मतलब ये जो प्रेशर है रेगुलरली कितनी डिस्टेंस पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज काफी डिस्टेंस के बाद हुआ, तो इसका मतलब प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो विंड की स्पीड होगी स्लो। अगर इतनी कम डिस्टेंस में इतना बड़ा डिक्रीज हो गया, दैट मींस विंड की स्पीड होगी बहुत ज्यादा। तो डिस्टेंस के साथ प्रेस, यानी आपके आइसोबार्स बहुत पास पास हैं, इसका मतलब विंड का जो प्रेशर है बहुत फास्ट डिक्रीज हो रहा है या बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, दैट मींस विंड की स्पीड फास्ट होगी। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो विंड की स्पीड होगी आपकी फास्ट। तो ये देखिए, जैसे कि मैं आपको क्लोजली स्पेस आइसोबार्स दिखाता हूँ और ये लार्जली स्पेस्ड है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर डिक्रीज बहुत दूर, सेम अमाउंट ऑफ डिक्रीज बहुत लंबी डिस्टेंस के बाद हो रहा है, और यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ डिक्रीज बहुत जल्दी हो जा रहा है। दैट मीन्स जब आपके आइसोबार्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब आपके आइसोबार्स क्लोजली पैक्ड हैं, दैट मीन्स विंड स्पीड ज्यादा है और यहाँ होगी विंड स्पीड स्लो। ओके, तो जो आपकी विंड होती है उसको 3 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी सब पढ़ चुके हो आप। पहली चीज होती है प्रेशर ग्रेडियंट। अगर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा तो विंड स्टार्ट ही नहीं होगी। तो विंड के स्टार्ट होने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट बहुत जरूरी है। देन कोरियोलिस फोर्स, ये डायरेक्शन चेंज करता था, ये उसका डिफ्लेक्शन चेंज करेगा। नदर्न हेमीस्फीयर में ये राइट की तरफ टर्न कर रहा था किसी भी विंड को, एंड सदर्न हेमीस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा था। और ये आप 2 दिन से इन डिटेल पढ़ चुके हो कोरियोलिस फोर्स में, मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। कोरियोलिस जो नाम है भाई साहब का नाम है, तो दिस इज जस्ट अ नेम ऑफ अ पर्सन हु वाज अ फ्रेंच, दैट्स ऑल। एंड उनके नाम पे है, हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन 2 दिन किया, तो आई होप कि अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी चीज आती है फ्रिक्शन। अगर आपकी विंड जो है अगर क्लोज टू सरफेस है, तो जो ट्रोपोपॉज पे होती हैं दे आर, उनको कोई दिक्कत नहीं है फ्रिक्शन की। लेकिन जो आपके सरफेस के क्लोज जब फ्लो करती है, तो विंड भी एक वो है। जब विंड का जो फ्लो होता है, विंड ऐसे फ्लो, ये देखिए मान लीजिए कि दिस इज द फ्लो ऑफ द विंड। तो विंड का फ्लो भी लेयर्ड में होता है। ऊपर की लेयर फास्ट फ्लो करती है, ये धीरे धीरे स्लो होती जाती है। मेन रीजन बीइंग कि अगर यहाँ पे सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, तो विंड तो इसके ऊपर है ना। आपको बताया था कि ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है आपका, जिसमें जिसे मैं अब एयर बोल रहा हूँ, दैट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। मैक्सिमम विद इन 5.6 किलोमीटर आपकी 50% ऑफ द गैसेस है। ठीक है, ये ऑल जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल।
and about 100 participants were there in almost all the classes. तो कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मैं अलग से शेयर कर दूंगा पुरानी क्लासेस। तो ये जो आपकी विंड है, जितना तो विंड की ये वाली जो लेयर जो अर्थ के बहुत नजदीक है, दे एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, इनकी वजह से इनकी स्पीड स्लो होती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होता जाता है। तो लोअर लेयर में फ्रिक्शन भी विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है, यानी विंड जनरेट होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसे इस डिफरेंस को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट्स द विंड, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट द विंड। ये जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है, ये आपको लगता है कि केवल जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उन्हीं पे लगता है, ऐसा नहीं है। ये आपके लिक्विड पे भी लगता है, आपके गैसेस पे भी लगता है। तो लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स कम होता है। तो आप जब गाड़ियां चलाते हैं इसलिए कराते मूव कर पाते हैं कि सरफेस पे फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसे ड्रैग बोलते हैं, या ये कम करेगा स्पीड। तो फ्रिक्शन की वजह से ये स्पीड घटती है, एंड लोअर लेयर में ये इफेक्टिव रहता है। तो फ्रिक्शन का भी रोल होता है। और तीसरा कोरियोलिस फोर्स। तो कोई जो विंड आपकी, अगर इफ आई टॉक अबाउट कि ये विंड है, ये देखिए, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर था, मान लीजिए 1000 मिलीबार का वो है ये आइसोबार, और यहाँ पे ये 900 मिलीबार का है, तो ये लो प्रेशर है, ये हॉरिजॉन्टली सेम हाइट में है, तो ये जो मूवमेंट होगा इधर होगा। तो इसे बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है, विंड स्टार्ट होती है, विंड की स्पीड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स एक्ट करने लग जाता है। और विंड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे विंड उधर जा रही है, तो यहाँ पे ये क्या करने लग जाएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करने की कोशिश करता है, स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। और कोरियोलिस फोर्स क्या करने की कोशिश करता है, डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है। तो ऑफ कोर्स जैसे आपने देखा था, अगर सरफेस पे, अर्थ की सरफेस की विंड की बात करते हैं, सरफेस पे कोई विंड इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुई है, मान लीजिए ये नदन हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो कोरियोलिस फोर्स इसके राइट की तरफ लगेगा, इसके राइट की तरफ। अगर आप ये विंड होते तो आपका राइट ये होता। तो कोरियोलिस फोर्स, अगर विंड इधर चलना तो स्टार्ट होगी, लेकिन धीरे धीरे, बिकॉज ये फोर्स इसे इधर खींच रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, धीरे 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 ऐसे होने लग जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई, टर्न हो गई टुवर्ड्स इस राइट। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से टर्निंग होगी, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से क्रिएट होगी। तो आप देखोगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा ऐसे ही लगेगा, हमेशा ऐसे ही लगेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा ऐसे ही लगेगा ऑलवेज। लेकिन कोरियल फोर्स हमेशा विंड की जो डायरेक्शन होगी, अभी डायरेक्शन इधर थी तो इसके इधर लगा, यहाँ पे डायरेक्शन ये रहेगी विंड की तो ऐसे लगेगा, यहाँ ये रहेगी तो ऐसे लगेगा, यहाँ ऐसे ये रहेगी तो ऐसे लगेगा। फाइनली ये क्या होगा, इधर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और यहाँ कोरियोलिस फोर्स। अगर ये विंड जो है थोड़ा ऊपर होती, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये दोनों फोर्स हो गए बैलेंस। तो ऐसी विंड जिन पे कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, अब ये विंड क्या है, इसका आइसोबार क्या था, एक आइसोबार यहाँ था, दूसरा आइसोबार यहाँ था, तो आइसोबार्स ऐसे थे। तो दिस विंड इज फ्लोइंग पैरेलल टू आइसोबार्स। ऐसी विंड को क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोफिक विंड। तो जब आपकी विंड ऊपर पहुंचती है ट्रोपोपॉज के पास, इट बिकेम जियोस्ट्रोफिक विंड। आज हम जेट स्ट्रीम्स की बात करेंगे, तो जेट स्ट्रीम को बोलेंगे वो जियोस्ट्रोफिक विंड है। दैट मींस आपकी जो आइसोबार है उसके पैरेलल ही आपकी विंड फ्लो कर रही है। ठीक है, वो धीरे धीरे टर्न होते होते होते, और ये विंड चली तो थी कहां पे, पोल की तरफ, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि, या फिर पोल से चली हो तो दूर तक क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ने रास्ता ही बदल दिया। तो ये उधर जाना चाह रही थी लेकिन जा नहीं सकती, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स ने बता दिया कि भाई इधर आ जाओ। तो कोरियोलिस फोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, अ बिग डिटेल, सो आई विल नॉट बी बोरिंग यू अगेन विद द सेम थिंग्स। ओके, तो ये जियोस्ट्रोफिक विंड आपको शब्द मिल सकता है कहीं पे, परेशान कर सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। जो विंड आपकी प्रेशर ग्रेडियंट के पैरेलल हो, देन यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय कोरियोलिस फोर्स। और जनरली फ्रिक्शन अपर लेयर्स में एब्सेंट रहेगा, उसका इंपैक्ट नेग्लिजिबल रहता है, लोअर लेयर में ही फ्रिक्शन का। तो ये तीनों चीजें काम करती हैं आपके, ये तीनों चीजें काम करती हैं आपके विंड पे। ये क्रिएट करेगा
ये डायरेक्शन चेंज करेगा और ये स्पीड को रिड्यूस करेगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा। इफ इट इज लेस देन स्पीड विल बी लेस। इट विल डिटरमिन डायरेक्शन। अगर स्पीड जीरो है तो कोरिलेस फोर्स भी जीरो है, स्पीड ज्यादा है तो कोरिलेस फोर्स भी ज्यादा है। और कोरिलेस फोर्स जो पोल्स पे मैक्सिमम होता था, इक्वेटर पे जीरो होता था, इक्वेटर पे कर्वेचर ही नहीं है, कर्वेचर पोल्स की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, वी हैव ऑल। एंड फ्रिक्शन का ये है, ये भी आपकी स्पीड को हमेशा कम ही करेगा, लेकिन इसका इफेक्ट लोअर लेयर्स में होता है। ओके अच्छा, तो फ्रिक्शन का इफेक्ट जो होगा, अगर ऑफ कोर्स अगर ये ओशियन के ऊपर विंड थी तो इस पे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। अगर लैंड के ऊपर है तो फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि लैंड इज नॉट फ्लैट सो हाई फ्रिक्शन, द विंड विल एक्सपीरियंस हाई फ्रिक्शन, तो विंड की स्पीड में डिक्रीज ज्यादा होगा। और यहाँ पे तो अगर कोई और फैक्टर नहीं है, प्रेशर अगर सेम रहता है, तो आप देखोगे ओशियंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी रादर देन लैंड। ठीक है, अच्छा अब आपने ये तो देखा ही था कि भाई आपका जो सन है, सन का अपरेंट मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है। सन का अपरेंट मूवमेंट जून में आपका सन जो है डायरेक्टली 12 बजे इस लैटिट्यूड के ऊपर होता है, और मार्च और सितंबर में जो है इस लैटिट्यूड के ऊपर दोपहर को 12 बजे होता है, और दिसंबर में इस लैटिट्यूड के ऊपर दोपहर में 12 बजे होता है। तो यानी सन आपका अगर मार्च से जून में इधर गया, फिर लौट के आया सितंबर में यहाँ पे, फिर दिसंबर में यहाँ पहुंचा, लौट के आ गया फिर जून में यहाँ पे, मार्च में, फिर इस तरीके से इसका अपरेंट मूवमेंट हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, बेसिकली तो अर्थ चक्कर लगा रही है। तो अगर जब सन यहाँ पे है तो आपकी जो विंड बेल्ट है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो समर में क्या होगा, अगर इफ आई टॉक अबाउट समर, दे विल शिफ्ट अप। तो ये नॉर्मली यहाँ होती थी, अब पहुंच गई यहाँ पे, और ये थोड़ा सा ऊपर ITCZ भी आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर में भी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मार्च सितंबर में सन इक्वेटर पे आ जाए तो ये भी नीचे आ गए, और दिसंबर में ये सन जो है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर में होता है दोपहर को 12 बजे, तो ये और नीचे आ जाएगा आपका। तो आपकी जो विंड बेल्ट जो है, प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर की बेल्ट जो है, दे कीप ऑन शिफ्टिंग इन रेस्पॉन्स टू द पोजीशन ऑफ सन। सन आपका इक्वेटर पे है या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ये ऊपर वाली रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है या 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। तो सन का अपरेंट मूवमेंट हमें ऐसा लगता है, इस वजह से ये बेल्ट्स जो हैं, हाई जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, या विंड की जो प्लेनेटरी विंड का जो सिस्टम है, दे आल्सो कीप ऑन शिफ्टिंग। ये चीज ध्यान रखना, जब रेनफॉल के बारे में बताएंगे तो ये काम आएगी, और वैसे भी नॉर्मल है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये छोटा सा चीज बता देते हैं, अगर आपको विंड की डायरेक्शन पता करनी हो तो आप विंड वेन यूज करते हो। विंड वेन विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, विंड वेन विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ विंड। और आजकल तो डिजिटल एनीमोमीटर आ गए, तो एनीमोमीटर क्या डिवाइस है जो विंड स्पीड यूज करने के लिए, विंड स्पीड कितनी है वो बता करने के लिए ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ये कॉमन से इंस्ट्रूमेंट है अगर इफ यू आर डीलिंग विद एनीथिंग व्हिच डील्स विद द विंड्स। तो बेसिकली विंड्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो आपने बता दिया कि इनका पॉजिटिव फैक्टर क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इनको जनरेट करेगा, कोरिलेस फोर्स इनकी डायरेक्शन अफेक्ट करेगा, एंड फ्रिक्शन जो है वो भी इसका स्पीड कम करेगा, उनको अफेक्ट करेगा। लेकिन 3 तरह की विंड के बारे में पढ़ते हैं, तो ये प्लानिटरी विंड तो सबने पढ़ ली, आपकी ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज, ये तो तीनों पढ़ लिया आपने। तो ये इनको बोलते हैं प्लानेटरी विंड्स। ये दे वो चाहे कोई भी सीजन हो, कोई भी टाइम हो, दे विल ऑलवेज बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट देयर आर सम लोकल विंड्स आल्सो, like Lou, like Nor'wester, like Chinook, these like Hermeton, like Siroku, like Khamsin। ठीक है, इनके बारे में हम बताएंगे। तो ये लोकल विंड्स होती हैं, लोकल कंडीशंस इनको जनरेट करती हैं, उसकी वजह से ये जनरेट होती हैं। सो देयर आर लोकल विंड आल्सो एंड देयर आर सीजनल विंड्स आल्सो। जैसे कि आपकी मानसून विंड है, तो आप देखेंगे मानसून का सीजन जब आता है हमारे यहाँ, मतलब समर्स में, तो विंड का डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है मानसून, बाद में रिवर्ट होके ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से विंड चेंज हो जाएंगी, वी विल सी देम। उसी तरीके से सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज,
सी की तरफ से हवा चल रही है तो सी ब्रीज बोला जाएगा। ब्रीज मतलब वो ठंडी ठंडी धीरे से जो हवा आती है उसको बोलते हैं ब्रीज, ठीक है। एंड उसी तरीके से माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज, ये क्या है, वो दिन और रात में चलती हैं। लैंड एंड सी ब्रीज दे आल्सो डे नाइट में है। और मानसून क्या है, वो सीजन है, 6 महीने ये 6 महीने वो, उस टाइप से है। तो वी विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। तो आपकी विंड, अगर विंड के बारे में बात की जाती है, पॉजिटिव फैक्टर आपने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरिलेस फोर्स एंड फ्रिक्शन बता दिए। तो उसमें परमानेंट जो विंड होती थी तो आपने तीनों डिटेल में पढ़ी ली है, वेस्टर्ली, पोलर, ईस्टर्ली। देन पीरियोडिक विंड्स में आपकी जो आती है मानसून आती है, लैंड एंड सी ब्रीज एंड ओशियन एंड वैली, माउंटेन एंड वैली ब्रीज एंड लोकल विंड, सो मेनी लोकल विंड्स आर देयर, वी विल टॉक अबाउट देम, ठीक है। ये कल तक हो चुका था। तो पीरियोडिक विंड्स जो होती हैं आपकी, अगर शॉर्ट पीरियड पर देखते हो तो उसमें क्या आ जाती है आपकी, लैंड एंड सी ब्रीज एंड माउंटेन एंड वैली ब्रीज। और थोड़ा सा लंबे पीरियड के 6 महीने टाइप, 4 महीने टाइप देखते हो तो उसमें मानसून विंड्स आ जाती है आपकी। ओके, तो मानसून विंड्स जो होती हैं उनका भी सीजनल रिवर्सल होता है, लेकिन उनका ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर होता है। लेकिन लैंड एंड सी ब्रीज पर डे इनका रिवर्सल होता है, माउंटेन एंड वैली ब्रीज का पर डे रिवर्सल होता है। तो इनका साइक्लिक रिवर्सल ही। तो एक बार आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड आएगा, बाद में आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड आएगा। तो डोंट वरी, मानसून से शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं है, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल, इससे आसान कुछ है ही नहीं। तो ऑफ कोर्स प्रेशर बेल्ट जो बनती हैं तो इनका क्या क्या रीजन है ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो लोकल विंड होती हैं वो लोकेलिटी की, कहीं पे टोपोग्राफी मतलब उसकी पार्ट, मतलब लैंड की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है वो डिसाइड करेगी। कहीं पे किसी कारण बस लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बन गया, तो ये सारी चीजें लोकल कंडीशन, जो लोकल प्रेशर डिफरेंस होंगे, क्योंकि हवा तो भाई प्रेशर डिफरेंस के कारण ही चलेगी, तो वो उनको डिसाइड करेंगे कि हवा कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ देखोगे, इंडिया लेवल पे भी कुछ देखोगे, ठीक है। तो जैसे कि चिनूक देखते हो तो अमेरिका में देखते हो, आप देखोगे कि जो रॉकीज माउंटेन है उनके ऊपर से आएगा वो। अभी हम एयर मासेस की भी बात करेंगे आज, ठीक है, एयर मास भी बात करेंगे, जेट स्ट्रीम की भी बात करेंगे। एंड डोंट वरी, दीज आर सो बेसिक, कुछ लोगों को बोर लग सकता है और कुछ लोगों के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ किसी को कुछ नहीं आता है, और हम उनको पढ़ा रहे हैं, और 7 दिन के अंदर उनका भी क्लाइमेटोलॉजी इन डिटेल खत्म किया जा सकता है, और हमने किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखेंगे, हरमेटन जो है आपकी सारा डेजर्ट में चलेगी। फोन जो है आपकी एप्स माउंटेन की तरफ से साउथ की तरफ आती है, कोल्ड विंड है। लू उसी तरीके से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में चलती है, नहीं फोन कोल्ड नहीं है, देखेंगे आगे, ठीक है। सीवियर वार्म है तो ये जो कोल्ड होती है उसकी सीवियरिटी को रिड्यूस करती है। अभी ये सारी चीजें डिस्कस करनी ही है, ठीक है। और आई होप ये मैं शेयर कर दूंगा, इसे तो देख लेना, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, बेसिक्स, अर्थ ऐसे घूमी हुई है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स रिलेटेड स्टफ था हल्का सा। तो जो कल लोकल विंड्स के बारे में बात हो रही, तो देखो क्लाउड्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, क्लाउड्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ क्लाउड बताए थे। तो एक तो लो लेवल पे जो एक तो मिडिल लेवल पे क्लाउड होते हैं जिनको ऑल्टो प्रीफिक्स लगा के बोलते हो। अगर वो कपास फॉर्म में है, ऐसे वर्टिकल राइज हो रहा है उनका, तो वो मिडिल लेवल पे थे इसलिए थे, कपास फॉर्म में थे क्यूमुलस हो गए। मिडिल लेवल पे थे, लेयर्ड फॉर्म में थे तो उनको स्ट्रेटस बोल दिया था आपने, स्ट्रेटस हो गए, ठीक है। अगर हायर लेवल पे थे, या तो सिरस होंगे, सिरो स्ट्रेटस होंगे, या सिरो क्यूमुलस होंगे। तो ये क्लाउड्स के फोटो भी दिखाए थे कल। यस, ये सारे के सारे दे आर फुल ऑफ आइस क्रिस्टल्स, 6 किलोमीटर की हाइट से ऊपर ही रहते हैं ये, ठीक है। ये 2 to 6 किलोमीटर की हाइट में मिलेंगे आपको। सो दे हैव मिक्स ऑफ बोथ आइस क्रिस्टल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, दोनों होंगी। एंड देन यू हैव लो लेवल, लो में कोई वो नहीं होता। फिर देन अगर किसी के सामने निम्बस लगा है तो दैट मीन्स उस क्लाउड से ऑलरेडी बारिश हो रही है, रेन क्लाउड है वो। तो निम्बस वाला जो होता है क्यूमुलो निम्बस हो सकता है, ये निम्बो स्ट्रेटस हो सकता है, दो चीजें। एंड ये जो सॉरी ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो है, दे डू नॉट फिट इन एनी लो, मीडियम और हाई क्राइटेरिया,
ये लो से स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक चले जाते थे। तो बताया था कन्वेक्टिव, इतनी ज्यादा हीटिंग होती है यहाँ पे, इतनी ज्यादा हीटिंग होती है, तो कन्वेक्टिव प्रोसेस जो है बहुत एफिशिएंट होता है। और बाद में देखेंगे थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, आजकल न्यूज में ही पढ़ रहे होगे कि इंडिया में 100 पीपल हैव डाइड। तो ये लाइटनिंग ट्रॉपिकल रीजन में ही लिमिटेड होती है, और लाइटनिंग इन्हीं क्लाउड्स में होती है। थंडर स्टॉर्म, ये लाइटनिंग थंडर जो होता है, बिजली का चमकना लाइटनिंग का आता है, और जो आवाज आती थी जिसे उसे बोलते थंडर, तो वो इन्हीं क्लाउड्स में होती है, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ही होगी। अच्छा, अब ये लैंड और इसके सी ब्रीज की बात करते हैं। सी ब्रीज का मतलब समुद्र की तरफ से जो लैंड की तरफ आने वाली हवा है। अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे होते, सपोज केरल या तमिलनाडु या इंडिया के किसी भी कोस्टल एरिया में, गुजरात से लेकर इधर महाराष्ट्र से नीचे जाते हुए आप कहीं पे भी हैं, तो आप अगर कोस्टल एरिया के निवासी होते तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे चाहे गोवा या कहीं पे भी कोस्ट में लोग जाते हैं तो बड़ा शाम को मौसम जो है यहाँ का बढ़िया रहता है। तो कारण बीइंग क्या है, बहुत ज्यादा ना तो हाई टेम्परेचर रहता है ना ज्यादा कोल्ड होते हैं। विंटर्स में भी बहुत सारे लोग, विंटर में सबका मन करता है कि सब लोग गोवा घूमने जाएं, मुंबई जाएं या बीच में जाएं या अंडमान की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको विंटर्स में भी आपको गर्मी का एहसास होता है, इतना नहीं होता। वो क्या कारण है, इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज क्यों है? आपकी टूरिज्म उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज उस पर डिपेंड करती हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट, दे आर नॉट जस्ट, दे हैव मेड देम लिवेबल। सो आज वर्ल्ड की एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ये इंडस्ट्री के लिए भी ये क्लाइमेट मेक्स दीज एरियाज फिट फॉर मेनी थिंग्स। सो इसलिए भी ये एक तो लिवेबल होते हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री और पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल एरियाज और सिक्योरिटी ऑफ द कोस्टल एरियाज, यू टॉक अबाउट कि भाई दीज आर वेरी, मतलब बहुत ही अच्छे क्लाइमेट वाले रीजन्स होते हैं। तो एक ज्योग्राफी का एक पॉइंट आ जाएगा उसमें, योर आंसर विल लुक एनरिच्ड। तो अब दिन में हीटिंग हो रही है, ठीक है, तो ओशियन का क्या है कि ये इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है वाटर का। हीट कैपेसिटी का मतलब है 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए। क्यू मैंने ऐसी रैंडम नंबर ले लिया, तो 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए इसको ज्यादा हीट चाहिए, इसको चाहिए मान लो 20 यूनिट हीट। लेकिन लैंड की हीट कैपेसिटी होती है कम, तो इसका काम जो है 5-6 यूनिट से ही चल जाएगा। 5 यूनिट से इसका काम जो है टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो अब सन तो नहीं देख रहा कि नीचे लैंड को दे रहा हूं मैं अपनी एनर्जी या फिर पानी को दे रहा हूँ। तो यहाँ से तो 20 यूनिट यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, लेकिन 20 यूनिट में इसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा, लेकिन इसका एक ही से बढ़ेगा। जब इसका एक से बढ़ा है तो इसका मतलब यहाँ की एयर जो है ज्यादा गर्म हो जाएगी, वो एयर गर्म हो जाएगी तो वो हीटअप होने के बाद क्या है, ऊपर उठेगी। एयर विल राइज, एयर विल हीट अप एंड एयर विल राइज अप, एयर विल हीट अप एंड एयर विल राइज। और यहाँ की एयर का क्या है कि ये तो रिलेटिवली कूल है, तो इसको तो कोई कारण नहीं है कि इतना हीटअप होने की। तो इसके कंपैरिजन में ये हॉट है और ये उतनी हॉट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ऊपर चली गई तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे जो एयर थी वो अपना चली आ रही है, और यहाँ पे तो रिलेटिवली हाई प्रेशर है, तो इसका मतलब विंड यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगी इधर की तरफ, विंड इधर की तरफ चल, और ये इसमें मॉइस्चर भी होगा, तो यहाँ पे आएगी, तो इसका जो मॉइस्चर होगा वो यहाँ से हीट लेके जो है वेपर में जाएगा। जैसे हीट लेके कोई भी लिक्विड वेपर में जाता है तो वो हीट कंज्यूम कर रहा है, दैट मींस ये दोबारा से कूल होने लग जाएगा। तो इसको कूल भी करेगी और इसकी तरफ हवा भी चलेगी, तो डबल इफेक्ट होगा। अगर आप खड़े हैं तो यहाँ आप कम तापमान भी एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि विंड चल रही है, तो आपकी बॉडी की सरफेस से इवोपरेशन भी फास्ट होगा, इवोपरेशन भी फास्ट होगा। तो इससे आपको डबल रेस्पाइट मिलेगा, आपके लिए बड़ा आनंददायक है। अच्छा, अब रात हो गई मान लो, तो रात में क्या होगा, कूलिंग होगी। रात में क्या होगा, कूलिंग होगी। अब कूलिंग होगी क्योंकि अब हीट तो, सनलाइट तो किसी को नहीं मिल रही, तो दे विल लूज हीट। तो अब हीट कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, मैंने बताया था। तो इसको क्यू अमाउंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करने के लिए चाहिए, क्यू अमाउंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लूज करने के लिए भी चाहिए, और ये अमाउंट ज्यादा है। और इसको कम अमाउंट चाहिए, तो ये जल्दी कूल हो जाएगा।
और ये जो है वार्म रहेगा। तो अगर ये कूल हो गया तो इसके ऊपर वाली एयर भी तो कूल हो जाएगी। अब कूल होके एयर हो जाती है हैवी और वो नीचे बैठने लगती है। अब यहाँ हो जाएगा हाई प्रेशर, और इसकी एयर को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उतनी टेम्परेचर पे है। तो इसके रिलेटिवली ये लो प्रेशर हो गया, क्योंकि यहाँ तो कोई एयर बैठी नहीं उतनी। तो ऊपर से एयर सिंक इन होने लगेगी कूलिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ कूलिंग होगी एक्सेसिव। अब एयर इधर से इधर चलने लगेगी। रात को क्या चलने लगेगी, लैंड की तरफ से हवा उधर जाएगी, लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज, तो ये ठंडी हवा इधर से उधर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ठंडी हवा रहेगी नहीं। तो आपका ये जो साइकिल है, लैंड ब्रीज और वार्म एयर जब इधर की तरफ जाएगी तो ये एयर पुश होगी ऊपर की तरफ, फिर इधर आएगी तो ये इसको फिर से कंफर्टेबल बना देगी। तो आपके कोस्टल एरिया दिन में भी और रात में भी कंफर्टेबल, और इनका जो तापमान होगा ना तो बहुत ज्यादा हाई होगा ना बहुत ज्यादा कूल होगा, चाहे आपके यहाँ इंटीरियर में कितनी भी सर्दी पड़ रही हो या कितना भी ज्यादा तापमान हो। इसलिए हाँ, गर्मियों में थोड़ा सा ह्यूमिड जरूर हो जाता है, तो उस वजह से मेनी पीपल अवॉइड गोइंग देयर, ठीक है। लेकिन अदरवाइज यहाँ आपकी कंडीशंस बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके लैंड एंड सी ब्रीज का, लैंड एंड सी ब्रीज का। तो अगर ये आपका लैंड है, इफ इट इज योर लैंड मास, सपोज ये लैंड है और ये ओशियन है, तो दिन में क्या होगा, डे टाइम में ये हीट हो जाएगा, हीट होके यहाँ से एयर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ लो प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा। रात में क्या होगा, रात में क्या होगा, ये लैंड है ये आपका कूल हो जाएगा। कूल 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 होने की वजह से क्या होगा, एयर यहाँ सिंक होने लगेगी, हैवी हो जाएगी, हैवी होके वो बैठ जाएगी यहाँ पे, तो ये हाई प्रेशर बन जाएगा यहाँ पे। भाई एयर तो गैस है, अगर हीट करोगे तो ऊपर की तरफ भागेगी अपनी एनर्जी को लूज करने के लिए, टेम्परेचर डाउन करोगे नीचे की तरफ आएगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम। अब यहाँ पे कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है ओशन में, तो ये जो प्रेशर था अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये लो हो गया तो ये उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे पहले 800 मिलीबार प्रेशर था और यहाँ पे भी 800 मिलीबार था। हीटिंग के बाद क्या हुआ, हीटिंग के बाद यहाँ रह गया 600 मिलीबार, गैस चली गई ऊपर की तरफ, एयर ऊपर अपलिफ्ट हो गई, तो ये नहीं हो गया हाई प्रेशर, तो विंड इधर की तरफ दौड़ेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, तो दिन के अंदर क्या होगा, आपकी सी ब्रीज चलेगी। ब्रीज का मतलब, अब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता इसलिए बहुत तेज हवा नहीं चलती, जो मध्यम गति से हवा चलती है मीडियम स्पीड से उसको बोलते हैं ब्रीज। धीमी धीमी हवा जो आ रही है उसको ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रात में क्या हुआ, ये भी 800 था दिन में, और मान लीजिए ये, अब ये नॉर्मली 800 था और ये भी 800 था। अब रात में ये ठंडा होने की वजह से ये 800 से 1000 पे चला गया मान लीजिए, और ये 800 ही रहा, बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आया, थोड़ा बहुत चेंज आएगा लेकिन इतना नहीं आया। तो ऑफकोर्स ये हाई प्रेशर हो गया, अब विंड इधर से इधर चलेगी, अब ये लैंड की तरफ से जा रही है तो ये लैंड ब्रीज हो गई, राइट। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का ये कॉन्सेप्ट है। तो नाइट में यहां से जाएगी, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि नाइट में लैंड की तरफ से ओशन की तरफ जाएगी। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट कोस्टल एरियाज, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल एरियाज, तो उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, फिशिंग इम्पोर्टेंस, क्लाइमेटिक इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंस, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यू टॉक अबाउट क्लाइमेट आल्सो विच मेक्स इट मोर, मतलब इसको काफी अच्छे एरिया बनाता है जो डेवलपमेंट के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में और बाकी चीजें होती हैं कि भाई सुनामी से प्रोन तो नहीं है, वो सारी चीजें आप देखोगे, साइक्लोन से प्रोन तो नहीं है, वो चीजें भी देखनी पड़ेंगी आपको। बट हाँ, कोस्टल एरिया में एक ज्योग्राफिकल एंगल भी अपने आंसर्स में डालेंगे, इट विल बेनिफिट। तो लोग अब अच्छा, एक और इशू है इसमें सीजनल में, ये है माउंटेन एंड वैली, माउंटेन एंड वैली विंड। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई वैली है इस तरीके की, तो अब रात, अभी यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे भी एयर होगी, अब दिन और रात में अंतर देखिए आप, ये एयर है और ये आपकी लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। अब सेम चीज है यहाँ पे भी। अब दिन के टाइम में, डे में देखते हैं दिन के टाइम क्या होगा। तो दिन के टाइम पे जो सन की लाइट पड़ रही होगी पहले तो यहाँ पड़ेगी, अगर ये स्लोप्स हुई तो इनफैक्ट ये वाला तो बच ही जाएगा,
और यहाँ पे ऐसे जाके पड़ेगी, ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है, ये स्लांटेड सरफेस जो है, इट गेट्स हीटेड, ये हीट हो जाएगी। इसके हीट होने की वजह से यहाँ की जो एयर है वो लाइट हो जाएगी, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगी। जब हीट होती है तो ऊपर की तरफ उठती है। ये पोर्शन जो है लो प्रेशर वाला, लो प्रेशर वाला होने लगेगा। जब ये लो प्रेशर वाला होने लगेगा तो विंड क्या चलने लगेगी, इसके अलोंग चलने लगेगी, तो ऊपर की तरफ विंड चलने लगेगी, क्योंकि इसकी ज्यादा हीटिंग हो गई, क्योंकि सरफेस अवेलेबल ज्यादा थी। यहाँ पे इतनी हीटिंग ही नहीं हुई, उतना ज्यादा उन्होंने सनलाइट नहीं पहुंची यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द टाइम वैली का एक फ्लोर जो है अगेंस्ट द स्लोप होता है, तो उसे तो विंड मिलती नहीं है। तो इसके ऊपर की तरफ हम ये बोलेंगे वैली की तरफ से आ रही है, तो उसको वैली ब्रीज बोल देंगे। और फिर रात में क्या होगा, नाइट में ये कोल्ड हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ ये जो एयर होगी वो हैवी हो जाएगी। तो हैवी होगी तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगी, स्लिप करने लगेगी अलोंग द, इसको बोलेंगे जो है वैली ब्रीज, सॉरी माउंटेन ब्रीज। तो मतलब रात में नीचे की तरफ स्लिप करने लगेगी और दिन में ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगी। तो ये भी आपके इसी लोकल विंड्स का हिस्सा है। अब तीसरी आती है, तो अब विंड्स जब आपने देखे तो एक तो आपने परमानेंट विंड देखे, एक सीजनल देखे। तो सीजनल में सी और लैंड हो गया, माउंटेन एंड वैली हो गया, एंड मानसून विंड्स। तो मानसून विंड्स में भी क्या होता है कि जैसे इंडिया, ये मान लीजिए, तो जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो विंड ऐसे आती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि ये ट्रॉपिक्स हैं। समर्स में सन कहाँ होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, और ये इंडिया का बहुत बड़ा लैंड मास है। तो ये इतना ज्यादा हीटअप होता है, इतना ज्यादा हीटअप होता है कि यहाँ से जो है वेपर ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। तो ये लो प्रेशर जोन बन जाता है पूरा। तो इतना बड़ा लैंड मास जो है, अगर ये लो प्रेशर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो इधर से जो ट्रेड विंड्स जो आ रही थी यहाँ से, दे क्रॉस दिस इक्वेटर। अब क्रॉस करने के बाद ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फिर क्या होंगे, राइट की तरफ टर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे कोरियलिस फोर्स की वजह से। तो राइट की तरफ टर्न होना स्टार्ट हुई, तो इस तरीके से ये विंड्स आती हैं। तो ये जो है इंडिया में, इसलिए जो मानसून आएगा पहले इसके यहाँ पहुंचता है, केरला कोस्ट को जाते हुए लक्षद्वीप वगैरह, और इधर इधर से ऐसे चलते हुए जाती है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट से आ रही है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो गई। तो जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है उधर से नाम दिया जाता है उनका। अगर इधर से आ रही होती है, क्योंकि ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो विंड इधर से आएगी। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे सन का मूवमेंट धीरे धीरे यहाँ आएगा इक्वेटर पे, उसके बाद नीचे जाएगा। तो सन का जैसे ही नीचे की तरफ पहुंच जाएगा, दिसंबर में पहुंच जाएगा वहां पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, तो फिर दोबारा से क्या होगा, ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। जो ट्रेड विंड चल रही थी, जो ट्रेड विंड नॉर्मल चल रही थी, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा ये, ठीक है। और ये जो है विंड्स जो है क्रॉस करके उधर ऑस्ट्रेलिया में मानसून की फिनोमेना को रिजल्ट देंगी। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मानसून रेनफॉल होगी, ये क्रॉस करके इसको जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में एंट्री मारेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा और आगे चलेगी 5 डिग्री या 10 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, तो उसमें कोरियलिस फोर्स काफी ज्यादा आने लगता है, तो उसकी वजह से इनका टर्निंग होने लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मानसून आएगा। तो एक तरीके से ये मानसून विंड्स जो है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया रहता है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन दे एक्सपीरियंस मानसून रेन, मानसून रेन, दे एक्सपीरियंस मानसून रेन, राइट। तो ये लोकल विंड्स हैं, एंड ये लोकल, ये थोड़ा बड़े लेवल पे है। मानसून के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। This is not the final discussion. I was just telling about wind, so I thought of just including so that you understand. And there are third category of local wind. वो लोकल क्राइटेरिया की वजह से अभी जस्ट एयर मासेस के बारे में बात करेंगे, तो ये आपको उनके जो कारण है वो यहाँ डिस्कस हो जाएंगे। बस नाम उनके सुन लो, कुछ लोकल विंड्स के जो नाम है, जैसे कि आपके
सदर्न, ये सहारा डेजर्ट वाला रीजन है। इधर की तरफ एक विंड चलती है जिसका नाम है हर्मेटन। इसको डॉक्टर भी बोलते हैं, हर्मेटर भी बोलते हैं कि ये यहाँ वाला जो इलाका होता है ये बड़ा ह्यूमिड एरिया होता है। यहाँ से विंड जो डस्ट लेके आती है वो हाइग्रो, तो वो जो है वो वार्म होती है, तो इसकी ह्यूमिडिटी को कम कर देती है, तो एक डॉक्टर का काम करती है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है एक तरीके से, इसको मोर लिवेबल बनाती है। तो यू कॉल हर्मेटन डॉक्टर आल्सो। इट फ्लोट टुवर्ड दिस डायरेक्शन फ्रॉम योर सहारा। सिरोकू जो है यहाँ से जाएगी और ये इटली में जाके रेन कराती है, क्योंकि ये सहारा से जो है आपकी ये डेजर्ट से सॉइल लेके जाती है। जब हम सॉइल के बारे में बता रहे थे, सॉइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और लॉयस प्लेटू वगैरह जो बने थे हमने बताया था, दे आर रिजल्ट ऑफ दिस ओनली। तो सिरोकू विंड जो जहां पे जाती है और वहां पर रेड रेनफॉल कराती है इटली में। रेड क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है डस्ट पार्टिकल्स थे जो कि सहारा डेजर्ट से पिकअप किए थे। उसी तरीके से जब इजिप्ट में ये विंड फ्लो करती है तो उसको बोलते हैं हम खामसिन। उसी तरीके से बोरा, मिस्ट्रल, फोन, इतना ही काफी है। लेवेंट कोस्ट है साइबेरिया, वो सीरिया के पास वाला जो है, तो इसलिए लेवेंट नाम दे दिया है। इतनी विंड्स के नाम काफी हैं। ये बर्ग वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पेम्पेरो एक विंड है जो कि आपके साउथ अमेरिका में। यहाँ पे आप चिनूक के बारे में पढ़ेंगे, इतना ही काफी है। और यहाँ पे ब्लिजर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वी विल टॉक अबाउट, जब एयर मास की बात करेंगे तो इन लोकल रीजन्स बताएंगे इनके क्या है। तो ब्रिक फिल्डर एंड सदरली जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की विंड हो गई है। बुरान जो है आपकी साइबेरिया में एक विंड हो गई। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा ना तो कोई एग्जामिनर पूछता है और नहीं आप मेंस में लिख पाएंगे अपने आंसरों में। तो जस्ट समझाने के लिए, ये सिरोकू, खामसिन, हर्मेटन, ये आपके जो एरिया है यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट वाला एरिया, यहीं से ये फ्लो करती है। ठीक है। बर्ग जो है आपकी साउथ अफ्रीका में। तो वी विल टॉक अबाउट एंड बोरा, मिस्ट्रल, फोन एंड लेवेंट, इनके बारे में आप बता सकते हैं। ये आपकी यूरोप वाले रीजन में है। आपके जो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, एप्स जो हैं, वहां पे फ्लो करती हैं। मिस्ट्रल उधर की तरफ से आ रही है, तो इसका मतलब जो पोल की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है वो कोल्ड है। एक्चुअली कोल्ड एयर मास इधर की तरफ पुल होता है। ठीक है। बाकी सब ये जो है नीचे इधर से इधर से इधर से जो आ रही है सब वार्म है। उसी तरीके से चिनूक है, ये आपके यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, यहाँ की तरफ से विंड चलती है, ये माउंटेन क्रॉस करती है। क्रॉस करने के बाद जब नीचे मूव करेगी तो गर्म होने लगेगी। तो ब्लेजर्ड्स की वजह से ये एरिया जो है ये पोलर रीजन की तरफ से है, ये बहुत चिल हो जाता है। ये जब विंड आती है तो ये इसको गर्म, नीचे आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्म करेगी, तो कंफर्ट देती है। तो चिनूक को स्नो ईटर भी बोलेंगे, कि यहाँ से स्नो कम कर देगी। ये चीजें सब आपने गोचिंग लियोंग में पढ़ी होंगी, छोटी छोटी चीजें हैं। गोचिंग लियोंग एक छोटी सी किताब है, अगर किसी ने नहीं ली हो तो, क्योंकि सभी लोग पढ़ते हैं उससे, इंग्लिश वाले। और जिनके पास नहीं है वो एनसीईआरटी से काम चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं। ठीक है। वो बस वहाँ फैक्ट का कंपाइलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बुरान है, ऑफ कोर्स पोलर रीजन से आ रही है। ठीक है। कारा बुरान एंड बुरान आर द टू विंड्स हियर। एंड उसी तरीके से आपके साउथ अमेरिका वाले में पेम्पेरो करके विंड्स हैं। अच्छा अच्छा, एक और छोटी सी चीज बिफोर मूविंग टू द अदर थिंग्स, दो चीजें बतानी है इनफैक्ट साइक्लोन मूव करने से पहले। तो जो हाई प्रेशर रीजन होते हैं और लो प्रेशर रीजन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है, और कोई साइक्लोन किसे बोला जाएगा? लो प्रेशर सिस्टम्स को ही साइक्लोन बोलते हैं, और जो हाई प्रेशर सिस्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटी साइक्लोन। इनको एंटी साइक्लोन बोला जाता है और इनको बोला जाता है साइक्लोन। मान लीजिए ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये आपके नदर्न हेमिस्फीयर में, तो दैट मींस ये इक्वेटर है, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये लो प्रेशर सिस्टम है कोई यहाँ पे इक्वेटर के, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री नॉर्थ या 15-20 डिग्री नॉर्थ के आसपास का कोई रीजन है, 15 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे विंड्स चारों तरफ से इसकी तरफ आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी? विंड चारों तरफ से आ रही होंगी। अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर है, हर विंड जो जहां से भी आ रही है अपने राइट की तरफ टिल्ट होगी। इस विंड का राइट क्या होगा? ये इस विंड का राइट क्या होगा? ये इस विंड का राइट क्या होगा? ये आप फ्लाई करके आओ इस विंड के साथ, तो इमेजिन करो
आप ऐसे आ रहे हैं तो राइट क्या होगा ये, तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कुलेशन है ऐसे हो गया, तो 12 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है, तो घड़ी तो ऐसे चलती है। और आपकी ये कैसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है अपोजिट, 12 से 9 फिर 6 ये 3, और जबकि घड़ी चलती है आपकी ऐसे। तो अब ये आपकी इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो आपके साइक्लोन्स होंगे उसके विंड की रोटेशन कहाँ होगी, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हाई प्रेशर सिस्टम जो कि एंटी साइक्लोन्स होते हैं, जैसे 30 डिग्री एल्टीट्यूड पे आपने देखा, वहां एयर क्या कर रही थी, ऊपर से सिंक कर रही थी नीचे, धीरे धीरे सिंक करती जा रही थी। तो यहाँ पे जब सिंक करती है एयर, नीचे की तरफ मूव करती है, तो आपको पता ही है कि वो हीट होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा उसका, एक्सपेंशन होगा तो दैट मीन्स इट विल बी हीटेड। तो कोई भी एयर पार्सल जैसे ऊपर से नीचे मूव करता है, तो नीचे तो हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर से सब्जेक्ट हो रहा था ये पी, ये नीचे की तरफ बहुत ज्यादा है, तो वो इसे कंप्रेस कर देगा, तो इसका वॉल्यूम इतना सा रह जाएगा, और नीचे आएगा तो उसका इतना सा रह जाएगा। जब कंप्रेस होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो ये हीट हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ रेन का कोई चांस नहीं है, क्लाउड का कोई चांस नहीं है, क्लियर वेदर, क्लियर स्काई। तो एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो क्लियर प्रेशर, मतलब क्लियर स्काई होगा, क्लियर जो हाई टेम्परेचर वाले जोन्स होंगे, एक तरीके से मतलब क्लियर स्काई कंडीशंस होंगी वहां पे, हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी, क्लियर स्काई कंडीशंस होंगी। हाई प्रेशर है तो यहाँ से तो लो प्रेशर की तरफ एयर भागेगी नहीं भागेगी, राइट। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये अब ये जो भाग रही है इसको अपने राइट की तरफ मोड़ दो, तो इसका राइट ऐसे, अगर आप ये जा रहे हैं तो इसका राइट कैसे होगा, ऐसे, इसका राइट कैसे होगा, ऐसे, इसका राइट कैसे होगा, ऐसे, इसका राइट कैसे होगा, ऐसे। ये क्या घड़ी की दिशा हो गई, घड़ी भी ऐसे चलती है, 12 से 3 फिर 6 9। तो जो आपके जो आपके एंटी साइक्लोन्स होंगे, एंटी साइक्लोन्स विल बी क्लॉकवाइज। तो कोई भी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन विल बी clockwise circulation of air in northern hemisphere, and एंटी जो साइक्लोन्स होंगे दे विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करेंगे विंड उसके अंदर, अगर वो नदर्न में है। सदर्न में होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है रटने की आवश्यकता नहीं है, नदर्न हेमिस्फीयर में एक छोटा सा गोला बनाओ, विंड को ऐसे दिखा दो, ये लो प्रेशर है तो आ रही है, अब उसको उसके राइट की तरफ टर्न कर दो, राइट की तरफ टर्न कर दिया तो आपको पता चल गया ये इस तरीके का घूम रहा है, तो ये इस तरीके का घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हाई प्रेशर हो तो उसको बाहर की तरफ निकाल दो, फिर डाइवर्ज होगी यहाँ से, अब इसको इसके राइट की तरफ टर्न कर दो, राइट की तरफ इस तरीके से टर्न हो रहा है, तो इस तरीके से कोई क्लॉकवाइज हो गया। तो जो आपके साइक्लोन्स हो वो लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो आपके हाई प्रेशर सिस्टम्स होते हैं। एंटी साइक्लोन में क्लियर कंडीशन स्काई कंडीशंस होंगी, हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी। जब आपके एंटी साइक्लोन अगर मतलब हाई प्रेशर है तो उस समय पे क्या होता है, हीट वेव्स की समस्या आती है, आपकी लू वगैरह, हीट वेव्स जो होती हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना में इतनी डेथ हो गई, इंटीरियर जो इंटीरियर रीजन्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा डेथ होती है, इंडिया में इशू आता है हर समर में। तो हीट वेव्स का कारण ये होता है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आ गई। आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मींस आपकी जो ग्राउंड से जो हवा जो गर्म हो रही है लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रही क्योंकि हाई प्रेशर है। भाई लो प्रेशर होगा तो विंड ऊपर की तरफ, लो प्रेशर में तो विंड ऊपर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर में तो विंड नीचे की तरफ आती है, ऊपर तो नहीं उठ पा रही। दैट मींस ये हीटेड होती रहती टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो एवरी टेम्परेचर से ऊपर शूट कर जाएगा, तो देन योर बॉडी इज नॉट अडेप्टेड टू दैट, तो यू स्टार्ट गेटिंग हीट स्ट्रोक्स, एंड हीट स्ट्रोक्स की वजह से काफी डेथ होती है इंडिया में। तो बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हीट वेव्स आर अ बिग इशू इन इंडिया। तो देन एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस वहां पे आप पढ़ते हो, एंड साइक्लोनिक कंडीशंस हम पढ़ेंगे। अब साइक्लोनिक इसमें टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दो साइक्लोन पढ़ेंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो फ्रंट बेस्ड होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट। तो यही है, हाई प्रेशर सिस्टम में डाइवर्जेंस होगा, और किस नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में घूमेंगे, आप इस छोटे से डायग्राम से बना सकते हैं।
तो रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके, देन वी आर डन विद दिस, वी आर done with this also. Okay, then let me talk about front air masses, not air masses. I will talk about jet streams first. I will talk about jet streams first. तो जेट स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जेट स्ट्रीम क्या बीमारी? तो ये देखो, ये आपने पढ़ाई था कि इक्वेटर वाला जो रीजन था, फिर आपके 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ, और फिर आपका नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अब इक्वेटर के पास में यहाँ पे हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जब आपने देखा ही था सन का अपरेंट मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा था, 23 डिग्री 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में। तो हमने देखा था कि ये जो 37 से 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच जो होता है, ओवर हीटेड जोन होता है। तो सन और ये जो पोल्स वाले रीजन होते हैं वो ओवरली कूल्ड होते हैं, वो ज्यादा कूल हो जाते हैं, ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो इसमें स्पेशली जो इक्वेटर के पास वाला रीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा हीटेड होता है, हाईली हीटेड। तो इस वजह से यहाँ पे जो क्लाउड जो विंड उठते जाती है बहुत ऊपर तक चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट कीप ऑन राइजिंग टू अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। इस तरीके से विंड का चलते जाना बोला कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्टिव मूवमेंट, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन होता है। तो इस वजह से ये पहुंच जाता है आपका 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो क्लाउड्स डेवलप होते हैं वो आप ट्रोपोपॉज देखा होगा, आपने बताया था ट्रोपोपॉज यहाँ पे ज्यादा हाइट पे होता है। लेकिन पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे ट्रोपोपॉज केवल 6 से 8 किलोमीटर की हाइट पे ही होता है। तो इस तरीके से विंड का राइज होता है, यहाँ पे मैक्सिमम राइज होता है। और यहाँ पे ही मैक्सिमम जो क्लाउड्स बनते हैं वो आपके जैसे ही ऊपर उठते जाएंगे क्लाउड एक्सपेंड होते जाते हैं, तो यहाँ पे आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। क्यूमुलस मतलब वर्टिकल ग्रोथ जिस क्लाउड की होगी वो क्यूमुलस क्लाउड होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होगा वो स्ट्रेटस क्लाउड होता है। और इनसे रेनफॉल भी हो रही तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं इनको। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं। अच्छा, अब ये एयर जब ऊपर चली जाती है यहाँ पे हाई प्रेशर, तो इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, इट मूव पोल्स। लेकिन धीरे धीरे यहाँ कोरियोलिस फोर्स जैसे इसके राइट की तरफ घुमाने लगता है। तो राइट की तरफ घुमाने लगता है तो 30 डिग्री पे जाके ये एकदम जियोस्ट्रॉपिक विंड बन जाती है। इट स्टार्ट्स फ्लोइंग पैरेलल टू, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग पैरेलल टू। तो यहाँ पे ये जो विंड का राइज हुआ, यहाँ पे जो ये जो विंड का राइज हुआ, जो विंड राइज करते 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 जब यहाँ आई, जब हाई प्रेशर की वजह इधर की तरफ डाइवर्ज होने लगी, तो इधर की तरफ डाइवर्ज होते होते ये जो है यहाँ पे सेटल होने लग जाती है इस तरीके से। और उसके बाद ये सिंक होने लगती है यहाँ पे नीचे की तरफ। तो ये हाई प्रेशर इस तरीके से बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था हेडली, फेरल सेल एंड पोलर सेल, ये तीनों आपने डिस्कस कर लिए थे इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल आप डिस्कस कर चुके हैं इनको। अच्छा, तो अब यहाँ पे फेरल सेल वाली जो विंड है ये भी ऊपर की तरफ मूव करती है। अच्छा, ये विंड जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से डाइवर्जेंस होती थी, हाई प्रेशर की वजह से डाइवर्जेंस हो रही थी, और इधर पोल्स की तरफ से विंड आ रही थी। यहाँ की विंड कोल्ड कोल्ड विंड थी, यहाँ की ये वार्म थी। तो ये वार्म जो है कोल्ड मिलती नहीं है, वार्म और कोल्ड विंड मिलती नहीं है। इट्स मूविंग अप, मूविंग अप के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये रिलेटिवली कूल विंड है और ये रिलेटिवली वार्म विंड है। दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा है। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो इनका प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऊपर में एक विंड जनरेट होती है, क्योंकि 30 डिग्री एरिया को क्या बोलते हैं आप, सब ट्रॉपिकल। तो ये 9 से 12 किलोमीटर की हाइट पे रहती है, कोई 9-10 किलोमीटर, 11-12 किलोमीटर। तो ये 9 to 12 किलोमीटर की हाइट पे ऊपर में एक बहुत ही तेज विंड चलती है।
इसको बोलते हैं जेट। जेट जेट का नाम सुनते ही आपको समझ में आता है जेट का क्या मतलब, कोई चीज बहुत पतली है और बहुत तेज चल रही है। तो जेट स्ट्रीम्स भी साइज में बहुत छोटी होती हैं। दे आर वेरी मतलब उनकी विड्थ कम होगी, साइज में बहुत छोटी होंगी और बहुत स्पीड से चलेंगी। तो जेट स्ट्रीम्स ऊपर में काम करती हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, और उसी तरीके, और कारण क्या है, तापमान का डिफरेंस। देखो इक्वेटर पे एक तो टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं है और प्रेशर डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कोल्ड विंड थी, ये वार्म विंड थी, और उस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस था। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक विंड क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। उसी तरीके से यहाँ पे ये पोल की तरफ से आने वाली कोल्ड विंड थी, और ये इधर की तरफ से आने वाली रिलेटिवली सब ट्रॉपिकल रीजन से ग्राउंड से जो आ रही थी वो वार्म विंड थी। जब ये भी मिलती हैं तो दे डोंट मिक्स, तो इनकी वजह से भी यहाँ पे एक ऊपर में विंड बनती है, उसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये पोलर जेट स्ट्रीम है। तो पोलर जेट स्ट्रीम्स एंड सब पोलर जेट स्ट्रीम, दो जेट स्ट्रीम्स आपको मिलेंगी। ये दोनों जेट स्ट्रीम्स आपकी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। एक तीसरी जेट स्ट्रीम भी होती है, वो केवल और केवल इंडिया के ऊपर प्रोड्यूस होती है, वो मानसून के टाइम पे प्रोड्यूस होती है, और वो वे ऑफ बंगाल से कुछ जो वे ऑफ बंगाल से जो डिप्रेशन है उनको इंडिया में खींच के लाती है, बारिश कराती है। तो इंडिया की मानसून बारिश में उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, साउथ वेस्ट मानसून का ही नहीं होता, उनका भी होता है। तो ये जेट स्ट्रीम्स ये जो है, और जेट स्ट्रीम्स जो है जिस तरीके से, क्योंकि ये विंड बेल्ट जो शिफ्ट होती रहेंगी, तो ये भी इधर उधर शिफ्ट होंगी। समर में ये इधर की तरफ चली जाएंगी, विंटर में की तरफ। तो समर में ये थोड़ा सा आगे की तरफ चली जाएंगी, विंटर में इधर की तरफ चली जाएंगी। इस लैटिट्यूड के हिसाब से दे कीप ऑन शिफ्टिंग। तो ये दो जेट स्ट्रीम्स हैं जो मेजरली आप पढ़ोगे, एक का नाम है पोलर जेट स्ट्रीम, एक का सब पोलर जेट स्ट्रीम। नाम इटसेल्फ इज इंडिकेटिव कि जो आपका जेट है ये नैरो होंगी और बहुत ही हाई स्पीड वाली होंगी और जियोस्ट्रॉफिक होंगी, क्योंकि जब ऊपर में आते आते जब ये पैरेलल फ्लो करने लगती हैं, ये दोनों विंड पैरेलली फ्लो कर रही हैं, दे आर नॉट मिक्सिंग। तो यहाँ पे स्ट्रा डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से ये जेट स्ट्रीम्स पैदा हुई हैं। तो ये जो पैरेलली फ्लो करने लगती हैं, तो ये इनको बोले एक तरफ आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, एक तरफ आपका पैरेलल जब विंड फ्लो करने लगती, तो आपको बताया था कि ये जो आपकी विंड इधर, अगर अपर एटमॉस्फेयर को देखें तो इधर की तरफ चली थी, लेकिन उस पर कोरियोलिस फोर्स काम करने लग गया, तो धीरे धीरे ऐसे चलने लग गई वो। ठीक है, तो ये 30 डिग्री लेटीट्यूड पे जाके सिंक होने लगेगी, नीचे बैठने लगेगी। लेकिन इसमें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर लग रहा था, कोरियोलिस फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अभी भी इधर है और कोरियोलिस फोर्स इधर भी इधर है। तो ये क्या हो गई, जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड मतलब, जियोस्ट्रॉफिक जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब अपर विंड है, और जिनके अंदर प्रेशर एक फोर्स, प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रेडियंट का फोर्स जो है कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस कर ले। तो दैट मींस जो हवा अपने आइसोबार के पैरेलल फ्लो कर रही है वो जियोस्ट्रॉफिक विंड है। तो आइसोबार के पैरेलल समानांतर इसी डायरेक्शन में, जिधर आइसोबार है उसी तरफ इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ये आइसोबार से प्रेशर इस तरीके से था और उसी के पैरेलल फ्लो कर रही, तो तो इसलिए जेट को बोलोगे तो नाम जेट इटसेल्फ इंडिकेटिव कि ये नैरो होगी कि नहीं होगी, नैरो होगी। ये फास्ट होगी कि नहीं होगी, फास्ट को अंग्रेजी में स्विफ्ट बोलते हैं। तो ज्यादा तेज जो चलते हैं उनको बोलते हैं बड़े स्विफ्ट हो भाई। तो उसी तरीके से इसको जेट स्ट्रीम को आपने नैरो बोल दिया, स्विफ्ट बोल दिया, देन जियोस्ट्रॉफिक बोल दिया, और चौथा आप बोल दो इसको अपर एटमॉस्फेरिक। ये यहाँ पे 9 to 12 ये 9 to 12 किलोमीटर की हाइट पे होती है, यहाँ पे भी 6 to 8 किलोमीटर की हाइट पे होती है पोलर जेट। तो सब पोलर जो सब ट्रॉपिकल है वो अबाउट 10 to 12 किलोमीटर बोल दो, और जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो आपकी 6 to 8 किलोमीटर की हाइट पे होती है। तो आपकी ये अपर एटमॉस्फेरिक विंड होगी, जियोस्ट्रॉफिक विंड होगी, स्विफ्ट होगी, नैरो होगी। और तीसरा इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो मियांडरिंग की होती है, जैसे नदियों में बताया था ना मियांडरिंग। मियांडरिंग का मतलब जो रिवर जो थी वो ऐसे ऐसे चलने लग गई, तो उसको बोलते हैं मियांडरिंग। तो इनकी भी मियांडरिंग होती है काफी, तो ये मियांडरिंग की प्रॉपर्टी भी रखती हैं। तो एंड दे डू शिफ्ट विद विंड बेल्ट, इनकी शिफ्टिंग भी होती है विद अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। तो इससे ज्यादा क्या लिखोगे आप जेट स्ट्रीम्स में। तो जेट स्ट्रीम्स आर अपर एटमॉस्फेरिक जियोस्ट्रॉफिक विंड which are swift and narrow
and they meander and they cover the whole surface of earth. तो अर्थ अगर ये है तो अपना पूरा का पूरा एरिया कवर करती है, यहाँ से जाएगी पीछे से घूमते हुए ऐसा, तो पूरी उसको करती है। दे आर वेरी मतलब एक्सटेंसिव। तो बस इतना ही है जेट स्ट्रीम्स में। इन जेट स्ट्रीम का यूज इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आपके अंदर विंटर रेनफॉल की बात करोगे, विंटर रेनफॉल इंडिया में जब होता है, विंटर स्नोफॉल या रेनफॉल, या फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात करते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है? एक एयर मास है। एयर मास है वो कहाँ? जो आपके भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी जो होता है, उसके ऊपर की जो एयर होती है उसको खींच के ले आती है जेट स्ट्रीम, जो सब ट्रॉपिकल है इंडिया में। और क्योंकि ये सी के ऊपर वाली हवा थी, जब इंडिया की तरफ आती है तो अब ये जब माउंटेन्स में राइज होता तो उसमें कूलिंग होके बारिश हो जाती है। तो इसमें मॉइस्चर था, ये जो आपके विंटर्स में भी रेन कराता है, तो ये जेट स्ट्रीम खींच के लेके आती है। उसके अलावा जो पोलर जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम जो है आपके ये टेम्परेट साइक्लोन जितने भी हैं और जो हायर लैटिट्यूड्स पे जो आपकी रेनफॉल होती है, सब इन्हीं की वजह से होती है। एयर मासेस आर द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर रेनफॉल। तो यही चीज अब आप यहाँ देख लो, ठीक है। तो जो आपकी ये मैं शेयर कर दूंगा आपको टेक्स्ट, सो दैट के आप कंफर्टेबली इसको देख सकें, पढ़ सकें। तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि ये कहाँ से मिलेगा। आई विल गिव यू, you will read it, but my purpose is that before giving you should just understand it, ठीक है। तो आप आपके जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जो आपके जेट स्ट्रीम्स हैं, ये क्या हो रहा है इसमें आजकल? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जितेंद्र थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, जस्ट होल्ड ऑन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मानसून के साथ, अभी एयर मास, एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका एयर मास ही। तो जैसे जैसे हम एयर मास को बढ़ाएंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली विल कम इनटू दैट। तो मैंने अभी आपके साथ एयर मास नहीं, एयर मास को ड्रैग करती हैं जेट स्ट्रीम्स, अपर एटमॉस्फेयर में चलती हैं। तो एयर मास अदरवाइज एक्चुअली बताएंगे, पहले तो आधे लोगों को यही नहीं पता होगा कि एयर मास क्या है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द एयर मास, देन वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। तो बिफोर दैट यू अंडरस्टैंड के व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स। द मेन पर्पस इज जस्ट लेटिंग यू नो के जेट स्ट्रीम्स आपके क्या हैं। तो अब जो आपके जेट स्ट्रीम्स हैं, तो जेट स्ट्रीम्स का मैंने ये बताया कि दो तरह के जेट स्ट्रीम्स आपको दिखाई देंगे जो परमानेंट है। एक ईस्टर्ली जेट होता है जो कि केवल मानसून में इंडियन लैंड मास के ऊपर बनता है। वी विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी विल टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी एंड मानसून इन डिटेल। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एयर सर्कुलेशन, जिसमें परमानेंट विंड के बारे में बताया गया। परमानेंट विंड, लोकल विंड्स एंड सीजनल विंड्स, एंड आपके फिर अपर एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो विंड्स चलती हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। ये लास्ट पीस है आपके विंड वाले कंट्रीब्यूशन। जेट स्ट्रीम्स के बारे में बता रहे हैं कि एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होगा, एक पोलर जेट स्ट्रीम होगा। और जो जेट स्ट्रीम्स होंगे नदन एंड में ट्रॉपिकल मतलब सब ट्रॉपिकल जो 30 डिग्री के आसपास होगा, जहां पे आपकी फेरल सेल और हेडले सेल की जो है, फेरल सेल वाली कोल्ड विंड एंड हेडले सेल वाली वार्म विंड अपर में 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे जहां मिलती हैं, ये मिक्स नहीं होती। तो अक्रॉस द ये आपस में मिक्स नहीं होंगी, मैं बताऊंगा बाद में कि ये मिक्स नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये जो है एक जेट स्ट्रीम जनरेट होता है। दूसरा आपका 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, जहां पे पोल्स की तरफ से कोल्ड विंड आ रही थी और यहाँ की तरफ से वार्म विंड जा रही थी, इनके ऊपर भी 6 से 8 किलोमीटर की हाइट पे एक पोलर जेट स्ट्रीम जनरेट होता है, जिसको पहले रॉसबी वेव बोला गया था। पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये दोनों जेट स्ट्रीम्स के बारे में ये बताया गया। ये इनका एवरेज जो पोजीशन होता है, ये कीप ऑन शिफ्टिंग, ठीक है, दे आर नियर टू ट्रोपोपॉज, ठीक है। और ये जेट स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो विंड के डायरेक्शन से ही डिटरमिन होता है। तो ये जो है सारी की सारी, अगर ये एटमॉस्फेयर ये है तो ये वेस्ट टू ईस्ट ही जा रही है दोनों की दोनों। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों की दोनों वेस्ट से ईस्ट जा रही है। तो इसलिए बताएंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इंडिया में क्यों लेके आएंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऐसी थी।
तो इंडिया की तरफ आ रही थी, रास्ते में जो मिला उसको उठा के ले आई, इसने आपके यहाँ बारिश करा दी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट रेनफॉल इन इंडिया, तो इंडिया की 80% रेनफॉल मानसून से आती है, लेकिन 20% और भी तो रेनफॉल है, उसे भी आप बताएं। तो हम बताएंगे उसके बारे में अभी, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोल रहा है कि 30 डिग्री के आसपास है और ये कोई 12-13 किलोमीटर के ऊपर है, और पोलर जेट स्ट्रीम जो है आपकी 60 डिग्री 50 से 60 के आसपास है और 8 से 10 किलोमीटर की हाइट पे है। अच्छा, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, दे आर नियर टू ट्रोपोपॉज। और ये आपकी जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं उनका मेन कारण जो होता है, ये बताया कि जेट स्ट्रीम्स आपकी काफी हाई स्पीड पे चलती हैं, विंड स्पीड्स आर वेरी हाई, और दे आर वेरी लॉन्ग, दैट मीन्स दे कवर होल सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये लॉन्ग होंगी, तो ये, और म्यांडर, तो आपने म्यांडर करते हुए देख लिया, म्यांडरिंग का मतलब इस तरीके से घूमना। तो दे कवर द होल सरफेस, सो दे आर लॉन्ग, दे आर स्विफ्ट, they are long, they are swift and they are narrow। narrow का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये नैरो है, ये नैरो है, ठीक है। नैरो का मतलब ये एक्सटेंट इनका नैरो है, तो ये नैरो है। नैरो मतलब पतली है। जैसे जेट नाम यूज हुआ तो अपने दिमाग में ये तो सबसे पहले आगे नैरो होगी, दूसरा ये भी आगे स्विफ्ट होगी, और तीसरा जेट से समझ जाओ ये ऊपर है, मियांडरिंग है, अपर ट्रपोस जियोस्ट्रॉफिक है। जियोस्ट्रॉफिक एक नया शब्द आ गया, अगर आंसर में लिखोगे तो क्वालिटी बढ़िया होगी। जो जेट स्ट्रीम पर सवाल पूछ रहा है वो जानता है कि जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, तो ये शब्द आपको यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्द है, ठीक है। ये दोनों नॉर्थ साउथ पोल यहाँ पे देखेंगी, ठीक है। तो और रैप ये चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है दैट इज द रीजन, कि क्योंकि एक कोल्ड एयर है एक वार्म एयर है, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एयर के अंदर ये मोशन क्रिएट हुआ, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस दैट मीन प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस मींस आपकी एयर का जनरेशन। और जो ये जो है आपके विंटर के टाइम पे कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, तो कॉन्टिनेंट के ऊपर ये स्ट्रॉन्गर होंगी, ओशन के ऊपर वीक होंगी। तो आप देखोगे सदर्न हेमीस्फीयर में तो लैंड बहुत ही कम है, in southern hemisphere you have very less land on most of the land of the world, most of the land of all the continent is located in northern hemisphere only, इसी में है। यहाँ पे तो बहुत ही कम लैंड है, एक थोड़ा सा यहाँ का बसता, थोड़ा सा अफ्रीका का बसता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत कम है, तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये जो है उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट मैटर्स फॉर देम। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है टेम्परेचर का डिफरेंस, तापमान का जो अंतर है, जो किसमें, कोल्ड एंड वार्म विंड के बीच में। तो 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे आपकी कोल्ड एंड वार्म विंड ऊपर में मिल रही थी, एक इधर से कोल्ड आई इधर से वार्म आई, उसी तरीके से पोल के पास भी उधर से कोल्ड आई इधर से वार्म आई। तो ये डिफरेंस जो है जितना ज्यादा होगा, और ये विंटर में लैंड के ऊपर और भी ज्यादा हो जाएगा, तो विंटर में ये स्ट्रांग हो जाएंगी, समर में वीक हो जाएंगी। ये नदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में वीक होंगी, राइट। और दे विल शिफ्ट विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। सन जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चली जाएंगी, सन इक्वेटर पे आएगा तो नीचे आ जाएंगी, ये यहाँ पे है। तो समर में ये जो है और विंटर में इनका, तो विंटर रेनफॉल के अंदर ये जो है इंडिया की तरफ आ पाती है, लेकिन समर में ये हिमालय को क्रॉस कर जाती है, तो हम बताएंगे इसके बारे में। तो इनकी शिफ्टिंग समझ लो कि हाँ इनको विंड को शिफ्ट होना है, तो विंटर में ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी, ये विंटर में ये नीचे की तरफ आ जाएंगी, और समर में, विंटर में नीचे की तरफ आ जाएंगी, एंड समर में दे विल गो, समर में क्योंकि समर के अंदर ये सन है अब आपका यहाँ पहुंच गया है, और विंटर में आपका सन यहाँ से चल के यहाँ आ गया है, तो ये भी सन को फॉलो करते हुए हल्का सा नीचे आ जाती है, ये भी नीचे आ जाती है, और समर में ये जो है ऊपर पहुंच जाती है। जब ये नीचे आ जाती है तो इंडिया जो कि यहाँ पे रहता है आपका, ये जो इंडिया वाला जो पोर्शन रहता है, तो ये जो है इंडिया के नॉर्थ पोर्शन की तरफ रेन को ले आती है इधर से, लेकिन समर में क्या होता है ये ऊपर ही शिफ्ट हो जाती है, तो हिमालय से बियॉन्ड चली जाती हैं, तो ये समर में कोई रेनफॉल नहीं करा पाती हैं। तो जेट स्ट्रीम का रोल आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल आएगा, बट इतना समझ लो अभी कि जेट स्ट्रीम आपकी दो हैं, एक पोलर है और एक सब, ये जो है सब ट्रॉपिकल है, ये इस डायरेक्शन में जाती हैं, इस डायरेक्शन में जाती हैं। तो अब इससे अब जब टेम्परेट साइक्लोन इस डायरेक्शन में क्यों जाते हैं ये दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, ये एयर मास किधर से किधर जाएगा, लोकल विंड जिनकी बात कर रहे हो कि सिरों को इधर क्यों जाएगी, कौन क्या जाएगा, तो
ये आपकी जेट स्ट्रीम्स ही उनको लेके जाएंगे एयर मासेस को। तो यू शुड नो कि ये नैरो होती हैं, ये फास्ट होती हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हैं, जियोस्ट्रोफिक विंड्स हैं, मियांडर करती हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं एंड बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, और अपरेंट मूवमेंट सन के साथ ये है नॉर्थ साउथ इनका शिफ्ट होता रहता है। बस इतना समझ में आ गया तो दैट मीन्स यू अंडरस्टूड द जेट स्ट्रीम्स, यू अंडरस्टूड द जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। बाकी दिस थिंग आई विल शेयर, तो आप आराम से पढ़ लेना, और अंग्रेजी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये जेट स्ट्रीम समझ में आ गया है तो लेट्स गो टू द एयर मासेस, लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस। ज्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? कुछ लोगों के नेट खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूं बिफोर गोइंग टू एयर मासेस। ऑडियो का प्रॉब्लम तो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, आप लोग जब यूज टू हो जाएंगे इस ऐप से। अच्छा चलो, एक दूसरे को ज्ञान मत दो आप, लेट देम आस्क क्वेश्चंस। वॉल्यूम की कुछ कुछ लोगों को शिकायत हुई है, ऐसा मैं मैसेज में देख सकता हूँ। एंड ओके, थैंक यू सो मच अदर मेंबर्स हु आर गाइडिंग द अदर्स। अच्छा, मैं बता दूंगा अगले दिन का टॉपिक क्या रहेगा, कुछ ये अगले मैं बता दूं आपको, जैसे आप तक जेट स्ट्रीम वर फाउंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लोग जेट स्ट्रीम्स में आपके जिस डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम जा रही है उसमें आप अपना जेट ऊपर ले जाके, क्योंकि जेट जो फाइटर जेट्स होते हैं वो आपके कमर्शियल प्लेन जिस हाइट पे उड़ते हैं उससे ऊपर उड़ते हैं, तो जेट स्ट्रीम्स के हाइट पे ही वो ट्रोपोपॉज के नियर ही उड़ते हैं। और इनफैक्ट तो अगर जेट स्ट्रीम्स में आपने अपने फाइटर जेट को लगा दिया तो जेट स्ट्रीम अपने आप उसे लेके चली जाती है। तो जेट स्ट्रीम की डिस्कवरी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुई थी डेफिनेटली। एंड अगर आप जेट स्ट्रीम्स में अपने जेट को लगा दिया फाइटर जेट को, तो उसको सपोर्ट मिल रहा है ना। जैसे आंधी बहुत तेज आ रही है और हवा की डायरेक्शन में आप दौड़ना शुरू करते हैं तो वो आपको पुश कर रही है, उस तरीके से उनका फ्यूल बचता था। तो अमेरिकन, और थोड़ा सा आप जल्दी पहुंच जाएंगे, कम फ्यूल में पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो आप जेट स्ट्रीम में अपने उसको लगा देते थे। अगर अपोजिट जेट स्ट्रीम में तो दिक्कत होती तो यू अकॉर्डिंगली यूज टू एडजस्ट। डेफिनेटली। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेट करने का तो विंड अफेक्ट जो है कोरियलिस फोर्स था ही, उसी का तो नाम था। तो आज के लिए इतना ठीक है। चलो कल जो हम बात करेंगे, लेकिन अभी बस 5 मिनट और दो। एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन जो तुम्हें लगे कि कितना छोटे से छोटा है, आई विल आंसर। क्योंकि पर्पज ये है कि सबको समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। और अपना 1 घंटा दीजिए बस, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपसे, और क्लास को टाइम पे ज्वाइन कीजिए बस। ओके, सो लेट्स गो बैक। तो एयर मास के बारे में आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, मैं एनसीईआरटी आपको शेयर दिखा दूंगा, ग्रुप पर शेयर चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो एनसीईआरटी में भी आपके ये सब चीजें दी हुई हैं। एनसीईआरटी के अंदर आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब टेम्परेट, बियॉन्ड ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, तो ये सब जो फोटो बना के दिखा रहा है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ही बता रहा है। ये जो फोटो बना के दिखा रहा है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ही बता रहा है। आप लोग अपने वीडियो बंद करके रख सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्लास मैं ले रहा हूं। तो मेरे स्क्रीन शेयर से काम चल जाएगा। कुछ समस्या आ रही है इसमें थोड़ा सा स्क्रीन शेयर में। अच्छा, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम, प्रोबेबली मेरे यहाँ नेटवर्क का हल्का सा इशू है। कल का टॉपिक आपका ये जो एयर मासेस हैं इनको डिस्कस करेंगे, एयर मासेस को डिस्कस करेंगे कल के टॉपिक में। और दूसरा टॉपिक जो रहेगा आपका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। जब आपके एयर मासेस आप फिर समझ जाते हो अच्छे से, तो उसके बारे में आपको एनसीईआरटी का चैप्टर्स पढ़ लें, आपके क्लाइमेट के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर हो चुके हैं। एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का होगा, कोएपन का एक
क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कहाँ पे कितनी रेनफॉल आती है, कैसा क्लाइमेट होता है वहाँ पे, किस तरीके से किसी क्लाइमेट को क्या नाम दिया गया है, चाइना टाइप और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है, सवाना ग्रासलैंड्स कहाँ पे होंगे, क्यों होंगे वहाँ पे, ग्रासी क्यों, वहाँ पे पेड़ क्यों नहीं आए, ये सारी चीजें कल के टॉपिक में होंगी। दूसरा एक एयर मास इसका इशू रहता है, जिसमें चिनूक विंड और ये विंड हो गई, और आपके हिमालय का क्या रोल होता है इन साइबेरियन कोल्ड विंड्स को रोकने में, और एयर मास होते क्या है, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है एयर मासेस के बारे में, बट स्टिल इट इज अ सिग्निफिकेंट टॉपिक एंड यू मस्ट, मतलब बहुत सारी फिनोमेना को समझने के लिए, और हायर लेटीट्यूड्स में रेनफॉल इसी कारण होता है, हायर लेटीट्यूड्स में रेनफॉल इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो आपके जो एयर मासेस होते हैं वही मूव करते हैं उनकी वजह से। और दूसरा फ्रंट्स, तो जब टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, दो चीज होगी, और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन तीसरी चीज हो गई। ये तीन चीजें कवर होंगी कल की क्लास में, आप उसे पढ़ के आए और क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लें। आई विल ट्राई के नेटवर्क बेस्ट कैसे आ सकता है यहाँ पे, मेरे पास अभी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सो आई एम मैनेजिंग समहाउ। आई हैव आस्क्ड द पीपल टू डू, मतलब अगर हो पाएगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो थैंक यू सो मच, इफ देयर आर क्वेश्चंस आई विल टेक। जेट स्ट्रीम और साइक्लोन कितने अच्छे से, अभी साइक्लोन पढ़ाया ही कहाँ है, जेट स्ट्रीम समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से समझ में नहीं आ रहा आपको, स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज नहीं आ रही, या कोई दिक्कत है? कल की क्लास में बता दिया आपको, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस, और वो लास्ट क्लास होगी। और एनसीईआरटी से आप पढ़ लें, एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी बता सकता हूँ, नई वाली जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है। अपरेंट मोशन ऑफ सन की वजह से जेट स्ट्रीम का म्यांडरिंग नहीं होता है, म्यांडरिंग तो इनफैक्ट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही होता है, अपरेंट मूवमेंट की वजह से उसकी शिफ्टिंग होती है। जूम ऑटो डिस्कनेक्टेड सो मेनी टाइम्स, हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ, और ऑटो डिस्कनेक्ट का दिक्कत बिकॉज ऑफ प्रोबेबली इंटरनेट पहले कभी नहीं होता था, लास्ट दो क्लास से हुआ है। पॉलिटी में तो पहली क्लास होगी तो शुरुआत होगी, पॉलिटी की क्लास पहली होगी, और वो यूजुअली लैंग्वेज मेरी इंग्लिश ही रहेगी क्योंकि इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी होंगे, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द कॉमन मैन्स लैंग्वेज। गूगल मीट अब यूज नहीं होगा, पवेड की क्लास तो पाठक जी लेते हैं, तो वो बताएंगे, पाठक सर। प्रीवियस लेक्चर्स आई विल प्रोवाइड। पॉलिटी में तो हम ये जो लक्ष्मीकांत बुक है इसी से पढ़ेंगे, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज एनफ। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन से समझाएंगे, फिर देखेंगे लक्ष्मीकांत क्या अलग से बता रहा है। दैट्स ऑल। हिंदी में तो देखो, मैं शुद्ध हिंदी में नहीं पढ़ा सकता, मुझे शुद्ध हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं है। हिंदी माध्यम मेरा रहा है क्लास 12 तक, लेकिन उसके बाद से मैं हिंदी माध्यम में नहीं रहा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको जो डाउट हो आप हिंदी में पूछ लें कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर कुछ चेंज होगा तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड, प्रोबेबली टाइमिंग विल बी, जो आपका टाइमिंग रहेगा वो